Hello students, hope you all are well. Today we are going to start the new chapter, okay, that is the living world. So let me start today with the new chapter named as living world. Okay beta. So in the last chapter, cell cycle, cell division, you have completed with that. Today we are going to start with the new chapter that is called the living world. Now, if I give you their first understanding about what is the living world, what we call is the living world. In this chapter, you have to learn about what are the livings. What are the living things? Living things के बारे में थोड़ा सा जानना है इस चैप्टर में आपको. Then you need to go through about what are the different lifespans in this chapter of different organisms का lifespan क्या होता है उसके regarding थोड़ा बात करेंगे. Then you have to understand what are the certain defining properties of livings. ओके कुछ प्रॉपर्टीज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की होती है उनको हम बोलते हैं डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है बेटा कि जो प्रॉपर्टी सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में पाई जाती है और वो नॉन लिविंग्स में अवेलेबल नहीं होती है तो उसको डिफाइनिंग प्रॉपर्टी बोलते हैं. ठीक है ना. सो दोज प्रॉपर्टीज विल डिस्कस अबाउट देम. देन लिटिल बट वी विल टॉक अबाउट द diversity in living organisms, in livings. Okay, then we will discuss about taxonomy plus systematics. Fine. What are these terminologies of taxonomy and systematics? ये क्या होता है? We'll discuss about that. Then similarly, we will discuss in certain topics called binomial nomenclature. Binomial nomenclature system. So we will discuss about how the scientific names are being given to the species or different organisms. That's called binomial nomenclature system. And then we will discuss about various taxonomical hierarchies. So we'll discuss about what are the different taxonomical hierarchies and taxonomical tools. ठीक है. So these are the points of the discussion in this chapter जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा. इनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे. That is whole about this chapter. Okay. So let me take you through the now conceptually what are the different topics and differentiations of these things. So let me start with the first. Let's talk about livings and non-livings. Fine. This is the concept बेटा you all must be knowing already. ठीक है. ये चीज जो है क्लास 4th में क्लास 3rd में पढ़ाई जाती है कि डिफरेंस लिविंग और नॉन लिविंग में क्या डिफरेंस होता है. ठीक है. सो देयर आर सो मेनी प्रॉपर्टीज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स जिनसे हम लिविंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं. जैसे हम बोलते हैं कि नॉन लिविंग्स जो है वो ग्रो करते हैं. ठीक है. सॉरी, लिविंग्स जो है वो ग्रो करते हैं और नॉन लिविंग जो है वो ग्रो नहीं करते हैं. ये एक कैरेक्टर है. ठीक है. ऐसे हम बोलते हैं लिविंग्स जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं और नॉन लिविंग नहीं करते. ठीक है. ऐसे ही हम बोलेंगे एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, लोकोमोशन, सो मेनी कैरेक्टर्स है ऑर्गेनिजम्स में जो लिविंग और नॉन लिविंग को आपस में डिफरेंशिएट करते हैं. ये हो गए नॉर्मल जनरल कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. ठीक है. तो वो बहुत सारे, ये हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ कैरेक्टर्स हम निकाल सकते हैं जिनमें हम लिविंग और नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट कर सकते हैं. बट
इसमें जो है कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो बिल्कुल यूनिक होते हैं। जो कैरेक्टर, सपोज कोई कैरेक्टर है, दैट कैरेक्टर, एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर, एनी कैरेक्टरिस्टिक फीचर which is observed in livings only but not in the non-livings, कोई भी कैरेक्टर जो है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो हम सिर्फ लिविंग्स में देख सकते हैं, ठीक है ना, लिविंग्स में उसको हम देख सकते हैं बट नॉन लिविंग्स में वो नहीं होता है, उस कैरेक्टरिस्टिक फीचर को हम बोलते हैं, इट इज कॉल्ड डिफाइनिंग, इट इज नोन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर, इट इज नोन एज डिफाइनिंग कैरेक्टर, ठीक है। सो द डिफाइनिंग कैरेक्टर इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर which can be only seen in the living organisms but cannot be seen in the non-living, that's called the defining characteristic feature। तो इसके ऊपर भी हम अभी बात करेंगे कौन सा फीचर डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है, ठीक है। सो बिफोर दैट there is a concept of lifespan, there is a concept of lifespan, okay बेटा। Now what is the lifespan? ऑर्गेनिज्म्स में हम लाइफ स्पेन किसको बोलते हैं? लाइफ स्पैन, इट इज द टाइम ड्यूरेशन, इट इज सिंपली a टाइम ड्यूरेशन which gets started from the birth to death, birth to the death, ठीक है ना। सो ये जो टाइम ड्यूरेशन एक ऑर्गेनिज्म का होता है, ये कब इस धरती पे आया कोई ऑर्गेनिज्म और कब इस धरती से चला गया, कब उसकी डेथ हुई, बर्थ हुई। सो बर्थ से लेके डेथ तक उसने जो पीरियड यहाँ पे निकाला, दैट पीरियड इज नोन एज द लाइफ स्पेन, ओके। नाउ दिस लाइफ स्पेन, इफ यू सी इन दिस लाइफ स्पेन इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, in different living organisms, see, remember the one thing why I said the lifespan. When there is a lifespan of any living organism, कोई भी living organism जो है उसमें एक चीज सर्टन है। क्या है? सर्टन है। वो ये है कि क्या बर्थ सर्टन है कि डेथ सर्टन है, बर्थ और डेथ। अगर हम दोनों में देखेंगे कि इन दोनों में सर्टन कौन सी चीज है, बर्थ जो है इट इज ऑप्शनल, इट इज ऑप्शनल कि किसी ऑर्गेनिज्म की बर्थ होगी कि ना होगी वो ऊपर वाला जानता है, ठीक है ना। बट अगर वो इस दुनिया में आ गया, एक बार आ गया कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो उसकी डेथ सर्टन है, उसकी डेथ सर्टन है, ठीक है ना। तो उसको यहां से जो है एक ना एक दिन जाना पड़ेगा। सो दैट ऑर्गेनिज्म हैज टू गो फ्रॉम दिस बायोस्फीयर, ठीक है ना। सो दैट डेथ इज एक्चुअली द सर्टन। नाउ द सेम लाइफ स्पेन फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, दिस लाइफ स्पेन इन ऑर्गेनिज्म्स, डिफरेंट ऑर्गेनिज्म्स, इट इज वेरिएबल, it is variable. So the lifespan is variable in different species, different organisms. Say for I'll give the example. This lifespan, if it is a variable, first it is variable, we know that, but this variable के साथ साथ ये जो lifespan है, this lifespan is not depending upon size, shape, volume of organisms, ये जो लाइफ स्पेन होता है ना, ये लाइफ स्पेन एक
इनहेरिट कैरेक्टर होता है हर ऑर्गेनिज्म के अंदर। ये लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म की शेप या साइज या वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं होता है। दैट आई विल टेल यू हाउ इट इज नॉट रिलेटेड टू विद दैट। बट बिफोर दैट रिमेंबर द लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म का होता है, दैट लाइफ स्पेन इज एक्चुअली व्हाट इट इज inherit, it is inherit character, it is the inherit character of each organism। कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है उसका ये लाइफ स्पेन एक इनहेरिट कैरेक्टर होता है। जैसे ह्यूमंस में हम देखेंगे कुछ, हम पहले अगर ह्यूमन की बात करते हैं, लाइफ स्पेन इन ह्यूमंस, ठीक है ना, लाइफ स्पेन। क्या आप देख सकते हो कि कोई ह्यूमन, अगर कोई ह्यूमन ह्यूज साइज का है, साइज में बड़ा है और वॉल्यूम भी, बॉडी में वॉल्यूम ज्यादा है, फैट है या बड़ा दिख रहा है, मोटा है, जैसा भी आप देख रहे हो, क्या उसका लाइफ स्पेन उस इंसान से जो लीन है, कम वेटेड है, क्या उससे ज्यादा हो सकता है उसका लाइफ स्पेन? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो ऐसे ही हर ऑर्गेनिज्म में भी डिफरेंसेस है। किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर साइज छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन जो है वो छोटे साइज या उसकी शेप या उसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, बल्कि उसके इनहेरिट कैरेक्टर यानी उसके जो अंदर जीन्स होते हैं, ठीक है, या उसका डीएनए आप ले लो, डीएनए जिस चीज से बना होता है, और उसके बाद अंदर सिस्टमैटिक प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे चलती है, ये सब हेल्थ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम अगर हम देखेंगे, हेल्थ के रिलेटेड इश्यूज होते हैं कि अंदर अगर इन चीज़ों में मेटाबॉलिक प्रोसेस में कोई डिफिकल्टी आती है, प्रॉब्लम आती है, तो सडन डेथ्स हो जाती है। मे बी अर्ली वो शायद और भी जी सकता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, बट इन चीज़ों की वजह से उसका लाइफ स्पेन कम होता है। बट फिर भी ये लाइफ देना, किसको कितना देना है, किसको कितना नहीं देना है, ये इनहेरिट कैरेक्टर साइंटिफिकली माना जाता है। उसके बाद देयर इज अ गॉड, और गॉड इज टू डिसाइड हु हैज टू लिव हाउ लॉन्ग इन दिस वर्ल्ड। ओके, सो रिमेंबर फर्स्ट ऑफ दैट। नाउ सिमिलरली ह्यूमंस, अगर ह्यूमंस में ये चीज होता कि कोई ह्यूमन साइज में बड़ा है ना, तो उसका क्या आपने देखा कि उसका लाइफ स्पेन 200 ईयर्स है, 300 ईयर्स है, ऐसा कुछ नहीं है। या कोई बिल्कुल छोटा है तो उसका लाइफ स्पेन जस्ट 1 ईयर या 2 ईयर है, ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है ना। वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स जो है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इफ वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ क्रो एंड पैरट, क्रो एंड पैरट, ठीक है ना। सो इफ साइज वुड हैव बीन द क्राइटेरिया, अगर साइज एक क्राइटेरिया होता किसका, लाइफ स्पेन का, तो क्रो का साइज और पैरट का साइज ऑन एन एवरेज सेम है। ऑन एन एवरेज बॉडी साइज, बॉडी वॉल्यूम जो है वो सेम होता है ऑन एन एवरेज। बट इफ यू सी द लाइफ स्पेन ऑफ क्रो, क्रो लिव्स फॉर 15 ईयर्स, इसका लाइफ स्पेन जो ऑन एन एवरेज 15 ईयर्स है। बट इफ यू गो फॉर द पैरट, पैरट का लाइफ स्पेन होता है मोर देन 140 ईयर्स, 140 years. So that is how you can see कि there is no correlation between comparison between the size, shape as well as the volume of the organism. अगर वो होता तो ये दोनों सेम है तो इनका लाइफ स्पेन सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। So this is inherent character, ठीक है। ऐसे ही डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एग्जाम्पल्स में एक और देता हूं, जैसे there is a cow, okay, and there is a elephant. काउ एंड एलिफेंट्स लाइफ स्पेन थोड़ा सा, काउ जो है वो मैक्सिमम 20 to 25 इयर्स तक जो है सरवाइव कर सकती है, दैट इज द लाइफ स्पेन ऑफ इट। बट सिमिलरली इफ यू गो टू द एलिफेंट दैट कैन सरवाइव अप टू दी 60 इयर्स, ठीक है।
सो ये लाइफ स्पेन किसी ऑर्गेनिज्म का होना, ये किसी साइज, शेप या नंबर या इन चीजों पे डिपेंड नहीं करता है, ये एक इनहेरिट कैरेक्टर होता है एक ऑर्गेनिज्म का. सो जस्ट understand that lifespan of any organism, it is the inherent character which is variable in the every kind of the species. ठीक है. Now this is about the lifespan. Let's talk about defining properties. Defining properties of livings. ठीक है. Defining properties of livings. Let me take you through the different defining properties of the livings. हर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो होता है, मैंने अभी बताया आपको कि उसमें बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं जिन पे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि ये लिविंग है और दूसरा नॉन लिविंग है, या ये लिविंग में होता है, ये नॉन लिविंग में होता है. ठीक है ना. बट देयर आर सम प्रॉपर्टीज, उनको समझने के लिए आपको कुछ प्रॉपर्टीज जो डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज नहीं है उनको भी समझना पड़ता है. जैसे देयर इज अ वन प्रॉपर्टी, सपोज there is a property named as organization, or you can call it as cellular organization. सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है बेटा? सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि एक इंडिविजुअल स्टार्ट हो जाता है, उसका बनना स्टार्ट होता है फ्रॉम द सिंगल सेल, देन सिंगल सेल गेट्स मल्टीप्लाइड, इट लेट द ग्रुप ऑफ द सेल्स, दैट मींस टिश्यूज. फाइन. टिश्यूज ग्रुपिंग होंगे, दे लेट द फॉर्मेशन ऑफ द टिश्यू सिस्टम बना देते हैं वो. ठीक है. टिश्यू सिस्टम और डेवलप्ड हो जाते हैं, दे लेट द फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गन्स. ठीक है. ऑर्गन जो है वो ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं. ठीक है. और ऑर्गन सिस्टम्स जो बनते हैं, दे स्टार्ट्स टू कोऑर्डिनेट, देन ऑर्गन कोऑर्डिनेशन हो जाता है अंदर. हर ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट ऑर्गन्स आपस में कोऑर्डिनेट मैनर में फंक्शन करते हैं, देन अल्टीमेटली वो उसी फंक्शन की वजह से जो है ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो जाता है. ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट. तो एक फुल ऑर्गेनिज्म जो बनता है, एक फुल ऑर्गेनिज्म बनता है इस तरीके से लिविंग ऑर्गेनिज्म्स में. सेल, टिश्यू सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम, देन होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है. जिसको हम बोलते हैं सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नाउ इफ यू टॉक अबाउट दिस सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टी, कि ये प्रॉपर्टी सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपर्टीज का फेनोमेना, ये अगर देखेंगे लिविंग में होता है कि नहीं होता है. इन केस ऑफ लिविंग्स, सारे लिविंग्स में सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होता है. ऐसे ही सेल से टिश्यू सिस्टम, फिर वो ऑर्गेनिज्म बना देते हैं. ठीक है ना. इस तरीके से जब ये सारे टिश्यूज आपस में फंक्शन करेंगे, सेल्स कोऑर्डिनेट होंगी, नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट, हार्मोनल सिस्टम, वो सारा मैटर करता है, तब जाके एक फुल फ्लेजेड ऑर्गेनिज्म बनता है. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स सिस्टम जो लिविंग्स में देखा जा सकता है. बट अगर हम नॉन लिविंग्स की बात करते हैं, so if we talk about non-living things, तो क्या नॉन लिविंग थिंग्स में ये सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन होना पॉसिबल है? सी, क्या नॉन लिविंग थिंग्स में कोई नॉन लिविंग थिंग एक सेल से बनता है? क्या फिर वो सेल डिवाइड होके ऐसे टिश्यूज बनाते हैं? क्या वो टिश्यू सिस्टम बनाते हैं ऑर्गन से? इस तरह का कोई ऑर्गेनाइजेशन नॉन लिविंग्स में होता है क्या? सबसे पहले याद रखो इंपॉर्टेंट चीज कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनाइजेशन जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है वो किससे बनता है? वो बनता है सेल से. किससे? सेल से. और सेल आपको पता होना चाहिए कि सेल का लिविंग मटेरियल क्या होता है?
सेल का लिविंग मटेरियल क्या होता है, जो सेल में लिविंग मटेरियल कहलाया जाता है, दैट इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म, तो सेल का लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म होता है। अगर जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म है वो सेल में कैपेबिलिटी है कि वो डिवाइड भी हो सकती है, वो रिप्रोड्यूस भी हो सकती है, ठीक है। तो जिस सेल में प्रोटोप्लाज्म है, तो लिविंग्स में जो सेल्स है वो प्रोटोप्लाज्मिक सेल्स है, तो इसीलिए लिविंग थिंग्स में ये सारा पॉसिबल है। बट नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं, ये ले लो, बोर्ड ले लो, पेन ले लो, वॉल ले लो, ये सब नॉन लिविंग्स है ना। तो नॉन लिविंग्स में क्या, नॉन लिविंग इस सेल से बना है, लिविंग सेल से बना है? नहीं बना है, उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे पॉसिबल दिखता है कि नॉन लिविंग्स में तो लिविंग मटेरियल हो ही नहीं सकता है ना। सो ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है ये सिर्फ पॉसिबल किन में है, ये सिर्फ लिविंग्स में पॉसिबल है, नॉन लिविंग्स में ये पॉसिबल नहीं है। इसीलिए फिर उसको क्या बोलेंगे कि ये जो सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन है, इट विल बी कॉल्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। So this is how we define, this is how we can determine, describe the डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है बेटा। सो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि जो सिर्फ लिविंग्स में देखा जा सकता है, नॉन लिविंग में नहीं, दैट इज नोन एज द डिफाइनिंग प्रॉपर्टी। जस्ट रिमेंबर दिस। नाउ another property, if we talk about the another property between livings and non-living, that is just like a growth. The another property is growth. Fine. Now what is growth? Growth जो है, if we take characteristic feature of growth, characteristic feature in livings, तो ये जो growth होती है हम कैसे देख सकते हैं? This growth can be, it can be measured. ग्रोथ जो है वो लिविंग्स में कैसे देख सकते हैं हम? दैट कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ लेंथ, in terms of height, in terms of number of cells, ठीक है, और in terms of increase in the volume, ठीक है। ये डिफरेंट चीजें हैं जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, जिनसे हम देख सकते हैं कि किसी लिविंग में ग्रोथ हो रही है। अगर वो लिविंग लेंथ में बढ़ रहा है तो हम बोलेंगे इसमें ग्रोथ हो रही है, अगर उसकी हाइट बढ़ रही है तो बोलेंगे ग्रोथ हो रही है, अगर उसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाएंगी, उन नंबर ऑफ सेल्स से जो है उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, कुछ चेंज होगी तो हम बोलेंगे ग्रोथ हो रही है, और अगर उसमें वॉल्यूम इंक्रीज होगा तो हम बोलेंगे ग्रोथ। सो दीज आर सच पैरामीटर जिनसे हम ग्रोथ को मेजर कर सकते हैं, ठीक है ना, देख सकते हैं लिविंग्स में। नाउ if we see the same growth, how this growth occurs in livings and how this growth occurs in non-livings, क्या पॉसिबल है कि ये ग्रोथ दोनों में सेम तरीके से होती होगी? लिविंग और नॉन लिविंग में ग्रोथ होती है कि नहीं होती है, ये देखें, इस पे डिस्कस करें ना। अगर हम लिविंग्स में देखेंगे, सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में क्या होता है? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म, देयर लाइफ गेट स्टार्टेड फ्रॉम ए सिंगल सेल, living cell, then from the cell they let the formation of same tissue systems, तो यहां पे क्या होता है कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो गया, नंबर ऑफ सेल्स यहां पे इंक्रीज हो जाती है, नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीजेस। तो ये नंबर ऑफ सेल इंक्रीज कहां से होता है? ऑर्गेनिज्म के अंदर से कि ऑर्गेनिज्म से बाहर से? तो जो ही ऑर्गेनिज्म बनने लगता है फ्रॉम द सिंगल सेल, तो ये सेल डिवाइड हो जाती है, इसमें सेल डिवीजन हो जाता है, तो उस सेल डिवीजन से मोर नंबर ऑफ सेल्स अंदर इंक्रीज हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जब इंटरनली ये इंक्रीजिंग ऑफ सेल्स हो जाता है, एंड दैट इंक्रीजिंग ऑफ सेल लेट द इंक्रीजिंग ऑफ सेल जो है इट इंक्रीजेस द वॉल्यूम एज वेल, ये ऑर्गेनिज्म का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर देते हैं अंदर से, ठीक है ना। सो उससे क्या होता है कि जो कोई ऑर्गेनिज्म होता है उसकी ग्रोथ दिख जाती है,
उसकी ग्रोथ दिख जाती है। जैसे आप सिंपल एग्जांपल ले लो कि एक ह्यूमन चाइल्ड कैसे बनता है ना, जब पहले फर्टिलाइजेशन होती है, एक सेल जायगोटिक सेल बन जाती है, जायगोट बनता है, फिर वो जायगोट डिवाइड हो जाता है, डेवलप हो जाता है, उसमें सेल डिवीजन होता है, सेल डिवाइड होते होते वो जो है एम्ब्रियो तक बढ़ जाता है, फिर फीटस बन जाता है, धीरे धीरे उसमें बहुत सारी चेंजेस आ जाती है, बट वो सारी चेंजेस इंटरनली आती है, यानी बॉडी के अंदर से। तो ग्रोथ अगर लिविंग्स में भी देखेंगे तो लिविंग्स में ग्रोथ क्या है, इंट्रिंसिक है। क्या है, इंट्रिंसिक। ग्रोथ इज इंट्रिंसिक टाइप इन द लिविंग्स, यानी ग्रोथ इंटरनली होती है, एक्सटर्नली इनमें नहीं होती है। सेकेंड थिंग, जो ग्रोथ लिविंग्स में होती है, तो ये ग्रोथ जो है एक बार जब लिविंग्स में ग्रोथ हुई, जैसे बच्चा जो है वो बनते बनते जायगोट से एम्ब्रियो, देन बनते बनते फीटस बन गया, फिर एक्सपेल, और आफ्टर बर्थ वो ही बच्चा बड़ा इंसान बन गया। तो क्या वो बड़ा इंसान होने के बाद, बनने के बाद वापस छोटा बच्चा बन सकता है? नहीं बन सकता है। सो ये जो ग्रोथ है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ऐसे ही प्लांट्स में ले लो आप, प्लांट्स में भी कोई प्लांट कहां से बनता है? सीड से बनता है। सीड के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स जो है वो सीड रहता ही नहीं है, फिर वहां पे रूट और शूट बनता है, धीरे धीरे वो प्लांट यानी ट्री बन जाता है, बड़ा ट्री बनता है। तो क्या वो बड़ी ट्री वापस वो सीड बना सकता है? वापस वो रूट और शूट जो जिस समय वो जर्मिनेट हुआ, ऐसा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स में एक ग्रोथ इज इंट्रिंसिक, एंड यहां पे ग्रोथ इनमें एक चीज होती है, दिस ग्रोथ इज ऑल्सो इरिवर्सिबल। इट इज इरिवर्सिबल, ये वापस नहीं जाती है। ग्रोथ एक बार हुई तो हुई, वो फिर वापस नहीं जाती है। तो इसको हम एक और चीज भी बोलते हैं कि लिविंग्स में ग्रोथ जो है वो परमानेंट है। क्या है? परमानेंट टाइप। ग्रोथ इज परमानेंट इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कि एक बार ग्रोथ हुई वो परमानेंटली हो जाती है। ठीक है। नाउ अगर हम इस ग्रोथ को नॉन लिविंग्स में देखेंगे, क्या नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये ग्रोथ कैरेक्टर ग्रोथ होती है कि नहीं होती है? सबसे पहले याद रखो, क्या आपको पता है कोई ऑर्गेनिज्म, कोई लिविंग थिंग, नॉन लिविंग थिंग सॉरी, क्या आपको कोई नॉन लिविंग थिंग पता है जो ग्रो होता है? नहीं, एज सच मोस्ट ऑफ द केसेस नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म ग्रो नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? सबसे पहले याद रखो कि ये प्रोटोप्लाज्म, क्या? प्रोटोप्लाज्म, द लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल, ये प्रोटोप्लाज्म सबसे पहले नॉन लिविंग्स में एब्सेंट होता है, क्योंकि वो सेल के बने नहीं है तो उसमें प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। तो यही चीज है कि उनमें ग्रोथ नहीं हो सकती है। सो नॉन लिविंग्स में ऐसा देखा जाता है कि ग्रोथ इनमें नहीं होती है। किस लेवल पे? लिविंग मटेरियल के लेवल पे, यानी लिविंग सब्सटेंस के लेवल पे। लिविंग सब्सटेंस इनमें नहीं बन रहा है। बट अगर हम नॉन लिविंग्स की ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ लेंगे तो ये इंटरनली होता है। क्या होता है? इंटरनली ये चीज होती है। तो नॉन लिविंग्स में ये नहीं है, इंटरनल ग्रोथ नहीं है। बट अगर हम ग्रोथ नॉन लिविंग्स में देखेंगे एक्सटर्नली, क्या देखेंगे? एक्सटर्नली। क्या ग्रो इनमें ग्रोथ एक्सटर्नल होती है? आई विल गिव सम एग्जांपल। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल मैं दूंगा आपको, नॉर्मल माउंटेन एंड स्नोवी माउंटेन, स्नोवी माउंटेन्स। ठीक है, एक नॉर्मल माउंटेन और एक स्नोवी माउंटेन। ठीक है, जैसे आज अगर आप कहीं विजिट करेंगे समर सीजन में तो आप माउंटेन देखोगे, है ना? कहीं जगह आपको माउंटेन दिखा, आपको माइंड में रह गया उसका कि ये माउंटेन इतना बड़ा है, ठीक है, साइज में। फिर आप जब विंटर में जाओगे उस माउंटेन के पास, विंटर में स्नोफॉल पड़ता है, वो स्नोफॉल जो है वो आइस में भी कन्वर्ट हो जाता है, तो एकदम चिपक जाता है माउंटेन के बाहर की सरफेसिस पे, और उससे कम से कम जो है जितना डिपेंड करेगा, अब स्नो 1 फीट है, 2 फीट है, 3 फीट है, तो 1 to 3 फीट जो एक्स्ट्रा स्नो इस माउंटेन पे पड़ा, उसने क्या किया? उसने बाहर से उसका सरफेस एरिया इंक्रीज किया। क्या किया? तो बाहर से जब हम उस माउंटेन को देखेंगे ना दूर से, तो हमें वो नॉर्मल माउंटेन के साइज से बड़ा दिखता है, तो उसमें भी तो फिर ग्रोथ हो गई है।
ये भी एक तरीके की ग्रोथ है उस माउंटेन की, किसकी, माउंटेन की, बट ग्रोथ इंटरनली नहीं हुई है, ग्रोथ एक्सटर्नली हुई है, ठीक है। सेकंड एग्जांपल मैं दूंगा आपको, सन ड्यून्स। क्या है, सन ड्यून्स। सन ड्यून्स जो होते हैं वहां पे भी आप देखेंगे कि रेत के बड़े बड़े ढेर बने होते हैं, उनसे बड़े बड़े माउंटेनियस लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम सन ड्यून्स बोलते हैं। जब आंधी आ जाती है तो उस आंधी से एक सन ड्यून से रेत उठ के दूसरी जगह जाता है तो वहां पे बना देता है सन ड्यून, है ना। तो ये सन ड्यून्स भी क्या है, ये ग्रोथ है किसी नॉन लिविंग की, बट एक्सटर्नल ग्रोथ है। क्या है, एक्सटर्नल ग्रोथ, ये याद रखो। सो दोनों में इफ यू सी इन नॉन लिविंग्स तो ग्रोथ इज कैन बी सीन एक्सटर्नली, बट दिस ग्रोथ इज रिवर्सिबल टाइप, इट इज रिवर्सिबल टाइप एंड इट इज टेम्पोररी टाइप, इट इज टेम्पोररी टाइप। देखो ये ग्रोथ, स्नो को कल जब धूप आएगी खत्म होगा तो माउंटेन अपने वापस साइज में दिखेगा, सो इट इज रिवर्सिबल टाइप। सेम ये जब कुछ ही समय तक रहा स्नो, उसके बाद खत्म, तो स्नो यानी ग्रोथ रही कितनी, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, सो इट इज टेम्पोररी, इट इज टेम्पोररी। सो दैट इज व्हाई बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स ग्रोथ कैन बी सीन, growth can be seen in the non-livings as well. Either it is externally but can be seen. If the character हम लेते हैं growth, तो growth possible है livings में भी और non-livings में भी। तो इसीलिए ये growth as a property हम defining property नहीं लेते हैं। So growth is not a defining property, remember that. So growth जो है it is not defining property. It is not defining property, ये याद रखो। सो इसलिए ग्रोथ को हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते, ठीक है बेटा। ओके स्टूडेंट्स, सो अब आपने देखा कि ग्रोथ जो है हम डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि लिविंग और नॉन लिविंग्स दोनों में ग्रोथ देखा जा सकता है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें इंट्रिंसिक ग्रोथ होती है, उसमें एक्सट्रिंसिक ग्रोथ होती है। तो ये सब जो है हमने डिस्कस किया है। नाउ विल गो विद द अनदर प्रॉपर्टी इन द सेम चैप्टर। इफ वी टॉक अबाउट रिप्रोडक्शन, if we talk about reproduction, ठीक है। सो रिप्रोडक्शन क्या है, रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब है टू रिप्रोड्यूस, टू रिप्रोड्यूस, ओके, और टू परपेचुएट, टू परपेचुएट, ठीक है ना। सो एग्जिस्टिंग सेल जो है या ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे न्यू डॉटर सेल्स बनाते हैं या न्यू ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, दैट इज सिंपली कॉल्ड द रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस करना सेम स्पीशीज की इसको या कंटिन्यूटी बढ़ाना, दैट इज नोन एज द रिप्रोडक्शन। ना अगर हम रिप्रोडक्शन कैरेक्टर लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में देखेंगे, सो लिविंग थिंग्स यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स, लिविंग्स में रिप्रोडक्शन होता है ये हम जानते हैं, बट रिप्रोडक्शन लिविंग्स में किस तरीके से होती है? बाय द प्रोसेस ऑफ एसेक्सुअल मेथड एंड सेक्सुअल मेथड, ठीक है ना। सो सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होता है, तो वो उससे रिप्रोड्यूस करते हैं। देयर आर डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वेल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दोनों में डिफरेंसेस है, ठीक है। गैमीट्स, नाउ दैट इज अ होल डीप टॉपिक इफ वी गो फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। यहां पे हमें समझना है कि लिविंग्स में ये क्या डिफाइनिंग प्रॉपर्टी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। सो ये सब पॉसिबल है पहले कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लिविंग्स में तभी होगी जब ये दोनों सेल के बने होंगे, व्हेन दे आर मेड अप बाय द सेल, ओके, बिकॉज सेल इज हैविंग द लिविंग प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल एंड सेल इज हैविंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस, ठीक है ना। सो ये एबिलिटी लिविंग्स में है इस तरीके से, तो वो डिफरेंट मेथड से रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट इन नॉन लिविंग्स, इन नॉन लिविंग्स, ठीक है। सो क्या नॉन लिविंग्स रिप्रोड्यूस
करते हैं या कर सकते हैं, ऐसा कैरेक्टर उनमें सब ये रिजेंबल हो सकता है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल नॉन लिविंग्स तो लिविंग सेल के बने नहीं होते हैं, नॉन लिविंग्स में लिविंग नेचर नहीं होता है, तो उनमें वो प्रॉपर्टी नहीं होती है कि वो रिप्रोड्यूस करे अपनी सेम। बट ये माना जाता है यहाँ पे कि नॉन लिविंग्स में सपोज कोई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है या नॉन लिविंग बॉडी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई विल गिव द एग्जाम्पल ऑफ volcanic eruptions, ठीक है, volcanic eruptions। तो volcanic eruptions में क्या होता है, ये माना जाता है कि वहां पे जो बड़ा सा टुकड़ा होता है, बड़ी पार्ट ऑफ लैंड हो सकता है या माउंटेन्स के अंदर जो है हाई टेम्परेचर किसी जगह पे हो जाता है, तो उसकी वजह से जो है वो फट जाते हैं, डिफरेंट एरियाज में लावा निकल जाता है। तो उस लावा के साथ क्या निकलता है, स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं उसमें, है ना। सो एक बड़े पार्टिकल जो है, एक बड़ा पार्टिकल, इट गेट्स ब्रोकन डाउन इनटू द स्मॉल पीसेस। सो एक बड़ा पार्टिकल छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट जब होगा, बट ये स्मॉल पार्टिकल्स, ये बड़ा पार्टिकल खुद किसका बना होता है, ये इन्हीं स्मॉल पार्टिकल्स का बना होता है ना। तो ये रिजेंबल कर रहे हैं इस बड़े पार्टिकल के साथ। दैट मींस कि बड़ा जो है अब इसने छोटे बनाए, ये जो प्रॉपर्टी है प्रोड्यूस करने की प्रॉपर्टी है ना, तो प्रोड्यूस ये भी कर रहे हैं, प्रोड्यूस ये भी कर रहा है एक तरीके से। तो ये प्रॉपर्टी रिप्रोडक्शन प्रॉपर्टी टू रिप्रोड्यूस, ये मैच होती है लिविंग्स में और नॉन लिविंग्स में, किसी जगह पे मैच होता है फर्स्ट ऑफ ऑल। तो उस वजह से जो है हम कह सकते हैं कि रिप्रोडक्शन टू रिप्रोड्यूस कैन बी सीन इन नॉन लिविंग्स एज वेल एज इन लिविंग्स। बट एक और चीज भी इसमें है कि लिविंग थिंग्स अगर हम देखेंगे कि सारे क्या ऑल लिविंग थिंग्स जो है, ऑल लिविंग्स आर क्या ऑल लिविंग्स आर एबल टू रिप्रोड्यूस और नॉट। क्या सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करने के लिए एबल होते हैं कि नहीं होते, इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शंस है। सो देयर इज अ एक्सेप्शन इन दिस कैरेक्टर इन लिविंग्स आल्सो, बिकॉज ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट एबल टू reproduce. Like there are infertile humans, they cannot reproduce also. There are infertile animals, they cannot also reproduce. तो animals, humans है ना, mules, they are resultant of the infertile animals. So different animal और plant humans में भी ये example है कि सारे living organism reproduce नहीं कर सकते. So the property reproduction, it cannot be taken as a defining property, because first it cannot be seen in the all living organisms, and second some of the non living organisms also resemble to this property. So because of these things, the reproduction, it is not a defining property. So remember, it is not a defining property, not defining property. So by these things you just got the aware now why reproduction cannot be taken as a defining property. Now another property, the third property, if we talk about, it's metabolism. So what is metabolism? First you need to understand what is metabolism. Metabolism क्या होता है बेटा? Now metabolism, it is sum total of all the reactions, sum total of all the biochemical biological reactions which occur inside the organism's body, that is known as metabolism. तो sum total of reaction में दो type of reactions होती है। कुछ reactions जो है इनको बोलते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शंस और कैटाबॉलिज्म होता है, which means breakdown of substances,
डिफरेंट सब्सटेंसेस जो हम खाते हैं या बॉडी में चला जाता है, ह्यूमंस में, एनिमल्स में, इवन प्लांट्स में, तो वो डिफरेंट डिफरेंट सब्सटेंसेस जो है वो ब्रेक डाउन हो जाते हैं, देन कॉम्प्लेक्स टू सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं. दैट होल प्रोसेस इज कॉल्ड कैटाबॉलिज्म. नाउ फर्दर इसमें एक और प्रोसेस भी होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म, विच इज नोन फॉर द सिंथेसिस ऑफ द सब्सटेंसेस. ठीक है ना. सो कैटाबॉलिज्म एंड अनदर प्रोसेस इट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. Anabolism, which means it is the synthesis of substances or compounds, ठीक है, और मॉलिक्यूल्स, डिफरेंट बायोमॉलिक्यूल्स, डिफरेंट कंपाउंड्स जो है बॉडी के अंदर बन जाते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में. तो उस सिंथेसिस को बनने की जो सिंथेसिस, प्रिपेयरिंग सिंथेसिस, दैट इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म. सो टू प्रोसेस ऑकर, व्हेन दीज टू प्रोसेस ऑकर साइमल्टेनियसली इन अ बैलेंस्ड मैनर, दैट गिव्स द कंप्लीट रिदम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, दैट इज नोन एज द मेटाबॉलिज्म. ठीक है ना. तो ये रिएक्शंस, कैटाबॉलिक रिएक्शन, एनाबॉलिक रिएक्शन जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, ये रिएक्शंस किसकी वजह से पॉसिबल है? दीज रिएक्शंस, ये जो रिएक्शंस है कैटाबॉलिक एंड एनाबॉलिक रिएक्शंस, दीज रिएक्शंस आर पॉसिबल, they are possible only with living material which is called protoplasm of the cell. तो ये प्रोसेस जो मेटाबॉलिज्म है ये तभी पॉसिबल है बेटा जब किसी सेल में, किसी ऑर्गेनिज्म जो सेल का बना होता है उसके अंदर लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्म होगा, तभी वो लिविंग मटेरियल कैटाबॉलिक रिएक्शन और एनाबॉलिक रिएक्शन करेगा, देन इट इज पॉसिबल, है ना. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल. नाउ द सेम थिंग if we see, this is how metabolism occurs in livings. If we take the metabolism in non-livings, ठीक है बेटा. तो नॉन लिविंग्स में अगर हम देखेंगे क्या ये मेटाबॉलिज्म पॉसिबल है कि नॉन लिविंग्स में हो जाए? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नो दैट नॉन लिविंग्स दे डू नॉट हैव अ सेल, वो सेल के बने नहीं होते हैं, उनमें सेल ही नहीं है. और लिविंग सेल अगर नहीं है सो देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म, there is no protoplasm. When there is no protoplasm, no living material, so it is not possible कि non living thing में कोई catabolic reaction हो जाए या anabolic reaction हो जाए. So in that way, so there is no possibility of metabolic reactions. So when there is no possibility कि इनमें metabolic reaction होगा ही नहीं, तो ये character जो है, ये property जो है metabolism, it can be only seen in the living organism. So this property can be called as, it is the defining property. So this is known as defining property of livings, which cannot be seen in the non-livings. ठीक है. So remember this thing. This is the defining property, metabolism. Now you got as of now two properties which are the defining property. One, cellular organization. Another, metabolism. You got it? Okay. So let's move ahead with another property to discuss. If we talk about the another property, it is called homeostasis. What is homeostasis? Homeostasis क्या होता है? Homeostasis is the process by which an internal environment of an organism is
balanced is balanced with outer environment, so हम होमोस्टैसिस किसको बोलते हैं कि एक ऑर्गेनिज्म जो होता है, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, एनिमल हो, प्लांट हो, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसका एक इंटरनल स्टेट होता है और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को बेयर करना पड़ता है। तो इन दोनों की कोलैबोरेशन, इन दोनों की बैलेंसिंग से एक ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्टिविटी दिखता है, एक ऑर्गेनिज्म कितना अच्छा करता है, प्रोडक्टिविटी उसकी क्या है। तो इन दोनों को अगर बैलेंस में कोई ऑर्गेनिज्म रखता है और इस बैलेंस को मेंटेन करता है, दैट बैलेंसिंग ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, इट इज नोन एज होमोस्टैसिस, इट इज नोन एज होमोस्टैसिस। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अभी यहां पे क्लास दे रहा हूं, फॉर एग्जांपल, ठीक है ना। सो मुझे यहां पे गर्मी लग रही है, क्या लग रही है, गर्मी लग रही है, तो पसीना यहां से आ रहा है। सो व्हाट आई एम फीलिंग, सो माय इंटरनल एनवायरनमेंट of the body, it is not comfortable, it is not comfortable, I'm not feeling comfortable, I'm sweating, so मेरा body temperature में भी rise भी हो गया होगा, है ना। But if I want to make it balance, I'm trying to make it balance, so what I need to switch on either the fan or either the AC. So the external environment will make me comfort of my own internal environment, so as an organism my productivity will be best, है ना। So this balancing is known as the homeostasis. Now ये homeostasis internal external environment किसकी वजह से हम कैसे हम मेंटेन कर पाते हैं। सबसे पहले homeostasis में क्या है कि जो इंटरनल एनवायरनमेंट एक ऑर्गेनिज्म का होता है, ये डिपेंड किस पे करता है, इट डिपेंड्स ऑन इट्स सेल और प्रोटोप्लाज्म ऑफ द सेल, यानी लिविंग मटेरियल ऑफ द सेल। अगेन, क्योंकि जब हम लिविंग है तभी हम फील कर सकते हैं, जब हम लिविंग है तब हम फील कर सकते हैं कि इधर टेम्परेचर इज हाई, इधर टेम्परेचर इज लो, एंड व्हाट इज माय इंटरनल एनवायरनमेंट, व्हाट इज माय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। तो उस चीज को हम फील तभी कर पाएंगे जब कोई ऑर्गेनिज्म सेल से बना है या इसमें लिविंग मटेरियल होगा, ठीक है ना। नाउ इफ दिस सेम थिंग homeostasis, if we compare it with in non-livings, सबसे पहले नॉन लिविंग्स जो है, दे आर नॉट मेड अप ऑफ बाय सेल्स इनमें नहीं होती है, लिविंग सेल्स। नाउ यू नो दैट देयर इज नो प्रोटोप्लाज्म आल्सो, तो इनमें प्रोटोप्लाज्म भी नहीं होता है, लिविंग सब्सटेंस। सो देयर इज नो पॉसिबिलिटी दैट एनी नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म और नॉन लिविंग सब्सटेंस कैन फील, okay, they don't have any property to feel what is happening with outer environment, what is happening there inner. So there is no such प्रॉपर्टी पॉसिबल इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, जैसे ये बोर्ड है नॉन लिविंग है, पेन है नॉन लिविंग है, मैं इसे क्या भी करूं इसको कुछ फील नहीं होने वाला, इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। सो दैट इज हाउ द इंटरनल एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को, जिसको हम मेंटेनेंस बैलेंस में चलाते हैं, वो पॉसिबल है जब किसी के अंदर सेल है, प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, वो फील कर सकता है। तो दैट इज ओनली पॉसिबल विद द लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसलिए जो होमोस्टैसिस है, दिस इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज ए डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज डिफाइनिंग प्रॉपर्टी, ठीक है। सो एज ऑफ नाउ यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द 3 डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज, ओके, दैट इज द थर्ड वन, होमोस्टैसिस। नाउ लेट मी टेक यू थ्रू अनदर प्रॉपर्टी, it's called consciousness. This is known as consciousness, ठीक है बेटा। Now the property consciousness हम किसको बोलते हैं, what is consciousness? Consciousness is simply, it is to aware about our own surroundings, and to respond accordingly.
ठीक है बेटा। सो हमारे आसपास कोई भी कुछ भी होता हो, जैसे आई एम अवेयर अबाउट नाउ दैट व्हाट आई एम डूइंग विद माई हैंड्स, व्हाट आई एम डूइंग विद माई ब्रेन, व्हाट आई एम डूइंग विद माई बॉडी, माई एक्शंस, माई स्पीकिंग, एवरीथिंग आई एम अबाउट दैट, अवेयर अबाउट दैट व्हाट आई एम गोइंग थ्रू। ओके, सो दिस awareness and what is surrounding to me, how is the environment, okay, what are the things surrounding to me, and whether it's a living, whether it's a non-living, how to respond them, I am aware about it. Okay, this awareness about own self and about the surroundings and to respond them accordingly, this is known as the consciousness. इसको हम बोलते हैं कॉन्शियसनेस। नाउ ये कॉन्शियसनेस जो है, अगर हम इसको डीपली देखेंगे, कॉन्शियसनेस किस इंसान में होती है? कॉन्शियसनेस ऑलमोस्ट सारे इंसानों में होता है। ऑन एन एवरेज जितने भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स हैं वो कॉन्शियस होते हैं कि मेरी बॉडी में क्या हो रहा है, मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, वी कैन फील दैट। इवन एनिमल भी कॉन्शियसनेस होते हैं, तो एनिमल को भी पता होता है क्या हो रहा है मुझे अंदर या मेरी सराउंडिंग में एनवायरनमेंट क्या है। दे ऑल्सो गिव द रेस्पॉन्ड टू दैट। Plants also, the plant also give respond. Plant also knows about its own internal as well as external surroundings. But accordingly, जैसे plant respond देता है light को, plant respond देता है gravity को. These are the response of the plant towards these surroundings. तो हर living organism में ये property होती है, consciousness होती है, ठीक है ना? But if we see this property consciousness in livings, तो लिविंग्स में ऑलमोस्ट सारे लिविंग जो है दे हैव दिस प्रॉपर्टी, क्योंकि वो लिविंग सेल से बने हुए हैं, उनके अंदर लिविंग मटेरियल प्रोटोप्लाज्मिक मटेरियल है, सो दे कैन हैव थिंक अबाउट इट, दे कैन जो है they can feel everything. Okay, so this property can be easily seen in all the living organisms. But if we compare the same, this consciousness in non-livings, ठीक है? तो नॉन लिविंग्स में क्या ये पॉसिबल है कि ये नॉन लिविंग, ये बोर्ड जो है, ये सराउंडिंग में जितने भी नॉन लिविंग चीजें आप देख रहे हो, क्या ये पॉसिबल है इनसे कि ये फील कर सकते हैं, ये सोच सकते हैं कि मेरी सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मुझे अंदर क्या हो रहा है? सो दे डोंट हैव दिस प्रॉपर्टी बिकॉज दे आर नॉट मेड अप ऑफ बाय लिविंग सेल. सो इन दैट वे दिस प्रॉपर्टी कैन नॉट बी सीन इन दी नॉन लिविंग्स. इट इज ओनली द प्रॉपर्टी विच कैन सीन विद द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो इसीलिए ये जो प्रॉपर्टी कॉन्शियसनेस है, इस प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी. ये भी याद रखो, दिस इज अकॉर्डिंग टू द नीट क्वेश्चन. नीट में एक बार एक क्वेश्चन आया था कि आपको इन सारी प्रॉपर्टीज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग्स में कौन सी प्रॉपर्टी जो है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी मानी जाती है. डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अब आपने देखा 2-4 है, सेल ऑर्गेनाइजेशन है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है ना, और उसके बाद आपने देखा होमोस्टैसिस है, अब आप देख रहे हो कि कॉन्शियसनेस भी है. बट इन सब में मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफाइनिंग प्रॉपर्टी अगर मानी जाती है, दैट इज द कॉन्शियसनेस. ठीक है, दो कॉन्शियसनेस इज प्रेजेंट इन ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, but still in this consciousness there are some exceptions. सारे ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस होता है, बट उसके बाद अगर हम देखेंगे इन केस ऑफ ह्यूमंस, अगर हम ह्यूमंस की बात करते हैं, सारे ह्यूमंस में कॉन्शियसनेस होता है, बट ह्यूमंस सबसे ऊपर है इन टर्म्स ऑफ कॉन्शियसनेस. क्यों? क्योंकि ह्यूमन आप देखो, जितने भी एनिमल्स हैं और जितने भी प्लांट हैं वो फील कर सकते हैं कुछ चीजें, लेकिन हमारी तरह, ह्यूमंस की तरह वो पास्ट को थिंक नहीं कर सकते हैं, वो फ्यूचर प्लान को थिंक नहीं कर सकते हैं. लाइक ह्यूमन वी कैन थिंक अबाउट इन द फ्यूचर,
what I wanted to do in the future time. I can think about the past, what has happened in the past. Okay, this ability, this capability which is present in ourselves, that character is known as, it is called self consciousness. Self consciousness. So this self consciousness is making the humans on prior as well as the higher category of all the organisms, ठीक है ना. सो ये याद रखो, ह्यूमंस में सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है जो इनको सबसे अलग और आला बनाता है, सबसे बेस्ट बनाता है, सबसे ऑन प्रायोरिटी रखता है. दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस. नाउ देयर आर फ्यू एक्सेप्शंस रिगार्डिंग दिस कॉन्शियसनेस इन ह्यूमंस. जैसे हम बोलते हैं सारे ह्यूमंस कॉन्शियस होते हैं, बट सम एक्सेप्शंस इनमें ये भी होता है. जैसे फॉर एग्जांपल a person in a coma, ठीक है ना. जब कोई पर्सन कोमा में होता है, ठीक है, तो कोमा में जो पर्सन होता है उसके पास कॉन्शियसनेस नहीं होता है, उसके पास कॉन्शियसनेस होता है नहीं होता है. दो ही कैन लिसन अबाउट द थिंग्स, ठीक है ना, बट ही इज नॉट एबल टू रेस्पॉन्ड. He is not able to respond. तो उसको वो एक तरीके से क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं कि वो बाहर से डेड दिखाई देता है, बाहर से डेड दिखाई देता है, कि वो किसी चीज को जो है वो इंफॉर्मेशन उस तक पहुंच नहीं पाती है प्रॉपरली, और ना ही वो रेस्पॉन्ड उसको दे पाता है, तो वो डेड इंसान की तरह दिखने लगता है. बट इनसाइड उसकी जो सेल बॉडी की होती है वो क्या होती है, वो लिविंग होती है. क्या होती है, लिविंग होती है. बट ही इज नॉट एबल टू कॉन्शियस, ही इज नॉट एबल टू कंसाइज. सो बिकॉज ऑफ दैट हम उसको बोलते हैं सिंपली इट इज द ब्रेन डेड. ही इज द ब्रेन डेड. उसका ब्रेन जो है वो डेड होता है एक तरीके से, बट बॉडी इज नॉट अ डेड. बॉडी इज नॉट. बॉडी सेल्स आर द लिविंग सेल्स. सो दैट इज द ओनली एक्सेप्शन इन टर्म्स ऑफ द कॉन्शियसनेस, ठीक है, इन ह्यूमंस. सो रिमेंबर that consciousness is the most defining property in all the living organisms. So these are the properties, different properties which you have gone through now as of now, but out of these properties जो है you have to focus on the defining properties like cell organization, metabolism, okay, homeostasis and this consciousness. These are the defining properties and you have gone through why they are defining properties. तो इन पे थोड़ा सा आपको फोकस करना है, इनको ज्यादा समझना है, ठीक है. So hope you have understood this topic fully. So thank you very much. Let's go for the next topic next time. Thank you so much.